السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج ہم اپنے شو کا آغاز اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے کریں گے. اور آج کی فلم، آج کی کہانی اور آج کے لوگ ہیں لیلا اور مجنو. لیلا مٹی کھا کھا کے موٹی ہو گئی ہے. جان پر دفعہ کون مٹی کھاندا؟ مجنو لیلا ککڑ خراب ہوا. مجنو لیلا دی وجہ تو فقیر نہیں ہویا، یہ ویسے بھی مانگتا سی. نہیں، اچھا خاصا شاعر تھا اور بڑی ٹھیک ٹھاک، مطلب اس کیلیبر کا نہیں تھا. وہ تو ایک ٹرائبل چیف کی بیٹی تھی. اس کی شاعری ہی تو تھی جو مجھے امپریس کرتی رہی. لیکن دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہے برباد محبت کا انجام، کہ جو عشق کر بیٹھتے ہیں، انسانوں سے عشق کرنے کا انجام یہ کہ اچھا خاصا شاعر تھا، ادیب تھا، ایک سینسیبل آدمی تھا. دیکھو کس چھچور پنے میں اللہ نے مبتلا کر دیا کہ اس کے گھر خود پیغام لے کے چل پڑا. بھئی تم کسی رشتہ دار کو بھیجو، کسی عزیز کو بھیجو، یہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے اس کا تذکرہ کرو. یہ قصیدوں میں اس کا نام لے لے کر اسے پکارنے لگا، اسے یاد کرنے لگا. اور اس کے بھائی تبریز نے اس کو وہ جوتے مارے. ان ساری دنیا دے شاعر تیرے کے بچے تے نہیں جام دے. جب پہلی بار لیلا دے گھر گیا، میں دروازہ کھڑکایا ہے، ہائے اندروں یہی بولی تے میں سمجھا، میں کہا چاچا جی میں لیلا نو ملنا ہے. یہ سمجھی میں جگت کیتی ہے، یہ ہس بھی میرے تے فدا ہو گئی. بس جب پہلی بار انہوں نے میرے ہاتھ رکھیا ہے، جب میری چیکاں نکل گئی. پھر انہوں نے میرے پیر تے پیر رکھے تو پورے محلے دیا چیکاں نکل گئی. مجنو تیرا دور پھٹے. اچھا مجنو نے ویسے ہویا دھوکھا ہی ہے. کی مطلب؟ لیلا عموماً اینو کھڑکی چ ویکھدی ہوندی سی، اخیر سامنے آئی. ویسے انٹرنیٹ پہ بھی اس جیسی لیلائیں بے شمار ہیں جو صرف کھڑکی پہ بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ نیچے والا دھڑ نظر نہیں آ رہا ہوتا. باقی پورشن تو مہینے بعد ویکھیا تھا. آفتاب صاحب سنے ویسے محبتیں نہیں ہوندی ہیں. ہاں دیکھ لو اس کا انجام. اندھی نہیں، پاگل بھی ہوتی ہے، احمق بھی ہوتی ہے، موٹی بھی ہوتی ہے. اچھا جس شخص سے اس کے ماں باپ نے شادی کی وہ بڑا حسین و جمیل، نرم و نازک، خوشگوار آدمی تھا. وردہ کے نام سے جانا جاتا تھا. وردہ واہ، مینز روز، گلاب، خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا. اسے چھوڑ کے دیکھو کس گٹر کے بچے کے پاس آ کے بیٹھا. مجھے نہیں پسند تھا، میں اس کو نہیں چاہتی ایک تھی. منٹ ٹھہر، جب پہلی گل تو پوچھ لین دے. میں مجنوعہ گٹر دا بچہ میں تو جو تم نے اپنا حشر کر رکھا یہ تو پیار چ مریا. میں تو یار بچاؤ لیلا کو لو. بات سنو کیا ہوا. مت کرو میری او بس اس کا ہاتھ تو چھوڑو. یہ پہلی میری دو انگلاں ٹوٹیاں نے. یہ تو پیار اچھی. ایسا مت کرو مجنو. ایک منٹ چھاڑ. لیلا ترکی دا رکشہ لگ رہا ہے. میرا خاندان پیچھے بہت بڑا خاندان آئی. اچھا صرف دی محبت دے وچ، اے تے پیار دے وچ اے تھلا چ رول گیا میں. میں نے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ بہن بھائی نہیں چھوڑے. وہ تو تینوں آپ چھڑ کے گئے سی. کہا کہ جتھے جاندی لے جا. سر ویسے یہ کہانی کب کی ہے اور کہاں کی ہے؟ یہ سن 640 عیسوی صحرائے عرب کی کہانی ہے. اور ایک بڑا مشہور ادیب ہے، ترکی ادیب حکمت. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہی قصہ 17-18 مختلف زبانوں میں سن رکھا ہے. یہ بڑی پاپولر، بڑی سپر ہٹ کہانی تھی. واہ، ہے فوک لور ہی لیکن سچا واقعہ ہے. اجیت بھائی نے بھی پتہ کیڑی سن عیسوی دا واقعہ ہے. یہ 8-9 واری دند نکل کے دوبارہ آئے. اچھا یہ بتاؤ کہ صحرائے عرب سے بھاگ کر ہندوستان کیوں آ گئے؟ نہیں میں پیچھے آیا، کسی نظر نہیں آیا تو پیچھے سی لگا. ایدی محبت دے وچ ہی میں. نہیں مجنو ہسو نہ چھڑاؤ مینوں. اچھا پہلوان جی تسی آرم لاک تو علاوہ اور کی جان دے ہو؟ میں کینوں کہہ رہے ہیں پہلوان جی. یہاں کون ہے تمہارے خیال میں؟ تم دونوں میں سے کون؟ نہیں مجنو ایسا. ایک منٹ ٹھہر. ایک منٹ. مجنو مجھ سے دور مت جاؤ. اسی کو تماشا نہیں کر رہے. اے لیلا سچی مچی بھوتر گیا ہے. بھوتر گیا ہے. مجنو میں تمہارے پیر پکڑتی. ہولی پکڑ جو تو پہلی بار پکڑے سی میرا گیٹا ادو تو نکلے ہوا ہے. اچھا لیلا آرتھوپیڈک ہوئی ہے. مت کرو مجنو. اے مجنو نے لیلا نو دڑا کے لے جانا سی سر. اونٹ نہیں منیا. لیلا بہن لگی، اونٹ لیلا نو ویکھ کے بہ گیا. بہت پیار کر دی مینوں. کون؟ اونٹ کے چاہتی ہوں تمہیں. جب اسی سراد میں پہلی بار ملے ہیں یاد ہے؟ بتاؤ ان کو. ایک درخت دے تھلے دو میں بیٹھے سی یاد ہے؟ یاد ہے. انہیں درخت نو ٹول آئی، درخت لمحہ پہ گیا. یہ تم دونوں سے کوئی گناہ، کوئی
जुर्म, कोई जुल्म सरजद हुआ होगा कि अल्लाह ने तुम्हें इन हालों को पहुंचा दिया। मोहब्बत करने वालों से इसी तरीके से होता है, और मोहब्बत इंसान आधा इसी तरीके से करता है हम लोगों से। लैला ने अपने अबू का गुस्सा पाया है। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मजनू तुम ऐसी बात ना करो कम से कम। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਰਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। कहता तेन कहता हसावा मजा नहीं आता। कहता मैं हुण बैठी नेड़े मैं तो दस दिया मैं तो जंप मारे ना उसे सारा कुछ मैं उजाड़ के रख देना दस दे कुर्सी करसी आओ जानी परे इत्थे जंप ना मारी लैला, इथों भी तेल निकल आना। अच्छा मजनू का यह हाल मोहब्बत च नहीं होया, वो लैला को लोग खौफ तो ही है ना। अच्छा जी, इन पर 4 मुख्तलिफ फिल्में बन चुकी हैं बड़ी। अच्छा मैं सुने कह रहे हैं इन पर 4 पर्चे हुए हैं। कौन कौन सी सर फिल्में? इसी टाइटल से, इसी उन्वान से लैला मजनू, जिनमें से मशहूर तरीन फिल्म वो थी जो ऋषि कपूर की, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस फिल्म का एक अफसोसनाक पहलू यह है कि मदन मोहन इस फिल्म के कंपोजर थे। इस फिल्म की तकमील के दौरान उनका इंतकाल हुआ। वो क्या है, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, मोहम्मद रफी के शानदार तरीन गानों में से एक है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका कंपोजर भी मदन मोहन, मेरा ख्याल है ये उनका स्वान सॉन्ग था, आखिरी कंपोजिशन उनकी ये थी। अच्छा, कैस के साथ यानी मजनू साहब के साथ दूसरा जुल्म ये हुआ कि जब इन्हें निकाल दिया गया कबीले से, तो सहरा में जाकर ये रेत पे, इसके पास कोई चीज नहीं थी लिखने के लिए, ये शेर रेत पे लिखा करता था। वाह वाह। उसकी शान में कसीदे लिखा करता था। और बेशर्म शख्स, तुम्हें यही काम रह गया था जिंदगी में। अच्छा मैं सोचा कोई तारीफ करने लग गए कि कैसे लिखते थे वहां पे तुम? सर फिल्मां दे विच ते हीरो हीरोइन या लैला मजनू एडे सोहने सन, तुसी किड्डे भैड़े बना के पेश कर ये रहे हो। मैं हीर रांझा के साथ भी मैंने यही किया था। हाँ जी। सोनी महिवाल के साथ भी यही किया था। उसकी वजह ये कि इन्हें आउट ऑफ प्रोपोर्शन फेम भी मिली, नेम भी मिला, खामखा। ये किया क्या था इन्होंने कि ओलंपिक मेडल जीता था। मैं अभी रोमियो एंड जूलियट की तरफ भी जाऊंगा अनकरीब। उन्होंने तो भी फोन आ रहे हैं कि साडा बेड़ा भी छेती कर करो। लेकिन तारीख विच ना ते इन्हां दी रकम ने, तुसी जो मर्जी कर लो। तुम एक कूड़ आदमी हो। नहीं, तुम कहते हो कि मशहूर बड़े हुए, शोहरत बड़ी मिली। मैंने कितनी दफा बताया कि शैतान से ज्यादा शोहरत किसे मिली होगी। लेकिन मोहब्बत दा ते अज भी इन्हां दा नाम लिता जांदा है कि मैं तेनू लैला मजनू वांगू प्यार करना, हीर रांझा वांगू प्यार करना। वो मोहब्बत जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, वो एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। वो मोहब्बत पागलपना है, सेल्फ नेगेशन है। और वो किसी दौर, ये नहीं कि फी जमाना, वो किसी दौर में भी काबिल कबूल नहीं थी। यही वजह कि इनका अंजाम अपने घरों में बुरा हुआ, अपने मोहल्लों में बुरा हुआ। इन्हें मुल्क बदर किया गया, इन्हें कत्ल किया गया, संसार किया गया। ये फिर भी नहीं समझे। और आज भी इनके मुकल्लदीन हमारे माशरे में, हर माशरे में मौजूद है। चंद दिन पहले एक लड़की और लड़के ने जहर पी लिया था। दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स थे और जहर पीकर बड़ा अपनी तरफ से तारीख में ना, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, कुत्ते की मौत मरे। माँ बाप दुनिया से शर्मिंदा जी, और ये अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदगी की, अपने ऑनर की, डिग्निटी की हिफाजत करने की तलकीन कर रखी है। कुछ ये कि तुम अपनी जान ले लो। पाइसन में तो बिठा के ना अपने कथारसिस कर दे। नहीं, मैं कोई कथारसिस नहीं करता। अच्छा लैला जी तो दुखी होती है ना। काली दौर में आपने भी कोई इश्क किया? मैंने इश्क विश्क नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। मोहब्बत की होगी। हाँ, मोहब्बत तो हो जाती है, मोहब्बत नेचुरल है। लैला ने मोहब्बत की थी तो मजनू ने मुशक्कत की थी। लैला तू इन्हां दी गल्लां ते ना जानी। सर कुछ दास्तानों में ये भी आता है कि लैला का रंग काला था। ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ये हमारे सबसे चहेते रिसर्चर हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ है दसो? मैं आप लोगों की करतूत बताना चाहता हूँ सर। इन्होंने एक दफा मेला मवेशिया में भी मुलाकात की थी छुप कर। मेला मवेशियां? जी सर। मेला मवेशियां क्या करने गए थे? ਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਗਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा यार, आप सीधे तो हो जाए प्लीज। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ हाँ, नीचे इस तरह का मैं ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਜਨੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਜਨੂ ਨਾ हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक। खुदिनो हज़रात, इब्न बतूता में आज हम आपको ले चलेंगे मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा। कायरा मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा शहर है और इसके मानी है
the conqueror, the defeater, फातेह। ये शहर दरियाए नील के किनारे आबाद है और इसका संगे बुनियाद सन 969 कबले मसीह रखा गया। सर आप कभी कायरा गए हैं? जी मैं कायरा जा चुका हूँ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? कायरा को ऐसी खास जगह नहीं, मैं तो एहराम मिस्र के लिए गया था, दरिया नील के लिए गया था। एहराम मिस्र अलबत्ता एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आज तक मिस्ट्री है, समझ ही नहीं आ सकी कि ये क्यों बनाया, कैसे बनाया गया। ऐसा बड़ा पत्थर जिसे जदीद दौर की क्रेन नहीं उठा सकती, कैसे लेकर वहां आया गया। और वहां का एक और मशहूर मॉन्यूमेंट अबुल हॉल, हाँ जी हाँ जी, वो जो लाफिंग स्टैचू है, वो लगता है जैसे बड़ा, उसे देखकर दहशत तारी होती है। अच्छा सर, दरियाए नील कैसा है? आपने तो देखा है। दरिया नील बहुत बड़ा दरिया है, उसमें मगरमच्छ तब भी थे, आज भी हैं। सर कोई चंगी चीज भी दसो, सारी डरावनी दसी जा रहे हैं। वहां पर मच्छर बहुत है ये अपनी वालों तेन उन्होंने अच्छी चीज दसी। और ये मच्छर ऐसा है कि अखबार से या कागज से, गत्ते से नहीं मरता, ये पिस्तौल ना मारी। उसको फ्लाई बीटर से मारते हैं तब मरता है, वो मक्खी के साइज का है। इसका म्यूजियम दुनिया के अजीम तरीन अजायब घरों में से एक है, जिसमें तकरीबन 1,36,000 आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं। और मैंने ये म्यूजियम देखा है, बड़ी लाजवाब जगह है। ब्रिटिश म्यूजियम के बाद अगर कोई आला तरीन म्यूजियम दुनिया में है तो वो ये है। इसमें कहते हैं उसकी फिरौन की लाश भी, जी फिरौन की ममियां यहां भी पड़ी हैं, और असल जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में। इजिप्शियन गैलरी है पूरी, जैसे इंडियन गैलरी है वहां की, तो इजिप्शियन गैलरी ब्रिटिश म्यूजियम की वो इससे कई गुना ज्यादा रिच और लाजवाब है। उथे पे फिरौन ये छलावा है। फिरौन खानदान था, फेरोज। अच्छा, ये फेरोज थे जो हमने पढ़ रखा है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है जो, जिसका तज़किरा कुरान पाक में है बड़ी तफसील के साथ। वो फिरौन रामसीज है, उसका नाम है रामसीज। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? रामसीज की लाश तो मिली नहीं थी, वो कैसे मरा था? सर समुंदर च डूब के। हाँ डूब के मरा था, उसकी लाश नहीं मिली थी। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰधा समुंदर च बाहर भी निकल आई सी। वो किसी ऐसे शख्स ने उड़ाई होगी जो फिरौन एक ही समझता है कि फिरौन एक ही था। अच्छा मैं एक की समझा जाए। फिर जनाब इसी शहर में दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी मौजूद है, जामिया अजहर। पहली यूनिवर्सिटी कड़ी सी सर? ये मोरक्को में है, ये भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिया अल करूबैन। ये कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। सच पूछे तो तक्षला यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ है, वो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, और वो हजरत यसु मसीह अलैहिस्सलाम के आने से पहले की है। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ लाई ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। टैक्सला को तक्षला कहते थे जी। तक्षला उसका कदीम नाम है। तो सर हुण यूनिवर्सिटी बंद है, हाँ जी। हुण उत्थे जुआ हुंदा है। और अगर आपने इसकी तारीख पढ़नी हो तो एक कैरेक्टर है गौतम नीलंबर। उत्थे हुंदे ने जी वो? नहीं 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 नहीं, आग का दरिया कुरतुल ऐन हैदर का बड़ा लाजवाब नॉवल है। वाह वाह। उसका एक पोर्शन वो तक्षला यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप पे है। सुभान अल्लाह, क्या कहानी है। यहाँ के लैंडमार्क्स में एक है अल तहरीर चौक। 1919 में मिस्री इनकलाब की बुनियाद इसी चौक में रखी गई। 1952 में बादशाहत का खात्मा हुआ, तहरीक इसी चौक से चली। फिर हुस्नी मुबारक का खात्मा जिस तहरीक ने किया वो भी अल तहरीर स्क्वायर से ही। अच्छा पीछे खात्मा होया। जी पिछले दिनों जो वाकया हुआ है। सर मिस्र च लोग भूखे सौंदे ने, तो खाने खुने का जिक्र नहीं हो रहा। इसकी ये चंद डिशेज ऐसी हैं जो मैंने खुद खा रखी हैं, मैं तस्करा कर रहा हूं। बाबा गनूश जी। ये डिश है या उत्थों दा कोई चौकीदार? बाबा गनूश। अच्छा मैं समझे खबर ये बुलाਉਂਦਾ है। नहीं नहीं, ਇਹ बाबा ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗਨੂਸ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਟਾ। बाबा गनूश दरअसल हमारे भुरते की एक इजिप्शियन किस्म है। ये बैंगन का भुरता नहीं होता जी जी, उसका गूदा लेकर बाबा गनूश ਨੂੰ ਭੇਜ उसमें डालते हैं काली मिर्चें, जीरा, बहुत सारा लेमू निचोड़ते हैं उसके ऊपर। फिर उसके अंदर मिक्स करते हैं जैतून का तेल। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ। जिथों खांदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ये बंदा आपको 2 प्लेटा बाबा गनूश लाया। ਉਹ 4-5 ਬਾਬੇ ਲੈ ਆਵੇ। 2 ਬਾਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ।
وہ کہے اے گلوش جی اچھا جی، یہ پیٹا بریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں. کیڑی جی؟ پیٹا بریڈ. بابا گنوش اور پیٹا بریڈ. اور پیٹا بریڈ سر میں فرسٹ ٹائم سنا کہ کوئی ڈش ہے بابا گلوش. تسی اوتے ایئرپورٹ تے اترنا نا، تسی آواز دینی ہے بابا گنوش اور پیٹا بریڈ بڑی ذرا. پیٹا بریڈ تو آپ کو لاہور میں ملتی ہے. کمال. ہاں جی وہ تو ملتی ہے لیکن بابا گلوش تو نہیں ملتا. اچھا جی، پھر ایک ڈش حمام مشائی. ہاں جی، اے جو تسی نہاؤندے ہو نا، حمام کس کو کہتے ہیں؟ گرم حمام سر. گرم حمام کس سے نکلا میں بتا چکا ہوں. ہاں جی وہ یہ جنگلی کبوتر گرم ہوتا ہے، حمام. فاختہ حمام. اس کو سٹف کیا ہوتا ہے چاول سے، گندم سے، چنے سے اور جڑی بوٹیوں سے. کبوتر آڑو جڈا ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ سب کچھ ڈال کر پیش نہیں کر دیا جاتا، اس کے بعد اس کو روسٹ کیا جاتا ہے. واہ. یہ روز کرتا بابا گنوش. جس طرح ڈشاں دے نام انہاں دے وکدیاں نہیں ہونی. پھر ایک چیز فلافل. فلافل ہے بہت سا، جیسے یوں سمجھو پکوڑے ہوتے ہیں نا، بہت اعلیٰ چیز. یہ سٹف کی ہوتی ہے میدے کے ایک لفافہ. اگر سیدھا پکوڑا کرے تو کی بیماری پیندی بندے نو. اس پکوڑے کو ایک دیکھیں اندروں پانڈ پونا بھی ہے. اس میں چنے پیسے جاتے ہیں. چنے بابے گنوش دے وچ نہیں یار، فلافل تیسری ہوگی فلافل آ گئی. اج فلافل آ گئی. بابا تو سو گیا ہوں. اس کے اندر چنے پیسے ہوتے ہیں، ٹماٹر باریک باریک، کھیرے کٹے ہوتے ہیں اور میدے کا ایک لفافہ بنا کے اس میں سٹف کیا ہوتا ہے. اچھا جی، پھر ہے ایک سویٹ ڈش جی. بسبوسا. ہیلو. یہ ارک گلاب اور شہد کے ساتھ بنا ہوا کیک ہے. کیک ہوتا ہے نا عام کیک، جیسے سیرپ کیک آپ کا بڑا مشہور سیرپ کیک ہے یہاں. وہ کھانگ دے دوران کھاندے. نہیں، چینی کا سیرپ، میٹھے کا سیرپ جو بنا ہوتا ہے وہ اس کے سپانج کے اندر اس کو باقاعدہ ایبزارب کیا ہوتا ہے، اور تاکہ جب آپ کاٹتے ہیں نا تو رسنے لگ جاتا ہے سائڈوں سے. چار ڈشاں جڑی دسیاں بندہ ایک بار کہنا ٹیرا ہو جائے بندہ. میں تو جن اتو جانا انہوں کہنا کہ اتو روٹی مصر نال لے کے جائیں، اتنے پتہ نہیں میرے کو بابا گنوش لبے نہ لبے. کچھ دن رات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. Simply Sufi ہر شرارت میں Simply Sufi مسکراہٹ میں زندگی کا ذائقہ بن جاتی ہوں. Simply Sufi Simply Sufi, add new flavors to life. چہرے پہ بکھری چمک تیری. گولڈن پرل بیوٹی کریم کا ملٹی ایکشن فارمولا دھوپ سے دے مکمل تحفظ. گولڈن پرل بیوٹی کریم، آپ جائیں جدھر ٹھہر جائیں نظر. سردرد 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 سردرد. درد جب سر چڑھ کے بولے تو 2 گولی ڈسپرنٹ پانی میں گھولے، جو صرف 60 سیکنڈز میں حل ہو کر سر درد دور بھگائے. کیونکہ ان سینڈلز کے ساتھ تو ریڈی اچھا لگے گا نا. تو پھر ریڈ ڈسپرنٹ سر درد کا فوری حل. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. خوراک لیبل کی دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں. کوئی جو رکھے پیار سے صرف ڈالڈا کوکنگ آئل. میں ہوں FR کیبل. میں 99.99% فل گیج کاپر سے بنا ہوں، اس لیے بجلی کے بل میں یقینی بچت. FR. ویلکم بیک. خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ، اور آج ہم ڈسکس کریں گے وہ الفاظ جو سامع کی غلطی، سننے والے کی غلطی کی وجہ سے غلط العام ہوئے. ان میں کاتب کا، محرر کا یا بولنے والے کا کوئی قصور نہیں. مثال کے طور پہ لفظ مستری. مستری. اب مستری تے سے نہیں ہے، توئے سے ہے. یہ مستر سے ہے. مستر عربی زبان میں اس پیمانے کو کہتے ہیں جس سے مستری دیواریں ناپتا ہے. جو بنانے کے بعد وہ جو ایک مختلف شیپ کا پیمانہ ہوتا ہے اس کے پاس، رائٹ اینگل والا، اس کو مستر کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اسے مستری کہا جاتا ہے. مستری نو شروع سے تئی پڑھتے آ رہے ہیں، تئی لکھا غلط ہے نا، غلط العام ہو چکا ہے.
जैसे शाबाश आपने आज तक नहीं सुना होगा, आपने हमेशा शाबाश ही सुना होगा। हाँ जी। ये शाबाश नहीं है, शादबाश है। हाँ, खुश रहो, शादबाश, खुश रहो। अच्छा, फिर एक लफ्ज है एतवार। वाह वाह। एतवार संडे, हाँ जी सूरज का दिन। हाँ जी। हाँ जी। ऐत कोई लफ्ज नहीं है, एतवार अच्छा जी। या इतवार ये कोई लफ्ज नहीं है। हुण की ये है इदित्या। अच्छा, छुट्टी बर्बाद ना करो। इदित्यावार, सूरज का दिन। सर ये तो कोई हिंदी लफ्ज है। हाँ हिंदी है, संस्कृत है। ये गलत उलाम हिंदी में हुआ और आपने अडॉप्ट कर लिया। फिर तैश, तोए से तैश में आ गया। हाँ जी। ये तपिश में आ गया भाई। हाँ वो तैश में नहीं, वो तपिश में आ गया। अच्छा जी, अब चलिए मेन अल्फाज की तरफ। हेलो हुण में ना। हाँ जी, पहले तो मैं मिसालें दे रहा था। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਸਤਰੀ ਇਤਵਾਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। एक फ्रेज है चारों शाने चित्त। तनक दिन चित, तनक दिन चित, तनक दिन चित, तनक दिन चित, कनक दिन। अच्छा, हर क्लास में ऐसे बदतमीज बच्चे होते हैं। कॉलेजेस तो भरे पड़े और होते 5-6 ही हैं। आप कितने हैं? हम 1 2 3 4 5 6 100। ये है चारों खाने चित्त। चित्त का की मतलब सर? चित्त, चित्त और पट, हेड और टेल। जब आप टॉस करने लगते हैं, चित्त मेरा पट तेरी। आज चित्त है तो मज मैं चुका। चित्त होता है अगर आप सीधे सीधे लेटे और आसमान की तरफ आपकी निगाहें हों, इसे चित्त कहते हैं। चित्त लेटना, चित्त पड़ना, चित्त बिछना। और अगर आप औंधे मुंह लेटे हैं तो फिर उसे पट कहते हैं। सर तुसी मालशी भी हो। तुम असल चीज को फरामोश कर रहे हो और बेहुदगियां करते चले जा रहे हो कि चारों खाने चित्त का क्या मतलब है। सर वही सानू देख रहे होगे कि ਅਸੀਂ बड़े गौर ਨਾਲ सुन रहे हैं। हाँ जी। ਅਸੀਂ परेशान है कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ हो ਕੀ ਰਿਹਾ। अच्छा, चारों शाने, कोई शख्स ऐसा देखा है जिसके 4 शाने हो? जी सर आड़ू। ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇ ਤੇ 45 शाने ने। चारों शाने चित्त गलत है। चारों खाने, ये पहलवानी जैसा एक खेल है जिसमें जैसे दंगल नहीं होता, हाँ जी। उसमें अखाड़ा जो है उसमें 4 खाने बना लिए जाते हैं और चारों खानों में आपको चित्त लिटाना बहुत जरूरी है ताकि आप कह सकें कि मैंने उससे चारों खाने चित्त किया। अच्छा जी, फिर है एक लफ्ज बाबू। बाबूजी धीरे चलना, हाँ, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। वाह जी वाह, बाबूजी धीरे चलना। शाबाश, बहुत अच्छा गाना है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये नसीर भाई का चैलेंज नहीं है। यानी कि साड़ी जान नहीं छूट रही। नहीं नहीं, ये वैसे गाया किसने है? इसने और उसने। अगर आप मुझे ये बता दें कि किसने गाया तो मैं आज फरंगे आसफिया बंद कर दूं। नसीर भाई दा नंबर लभो। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। जो साडे नसीब ना साडे लोग ते मरना नहीं, रहने दो। गीता दत्त। ओए ओए। अब बाबू की एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाबू का क्या मतलब? बाबू का मतलब पढ़ा लिखा नौजवान। हाँ, बाबू आमतौर पर अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल होता था। अब एटिमोलॉजी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अंग्रेज से किसी मकामी ने सुन लिया होगा बबून, कि यू आर अ बबून, तुम एक बबून हो, यानी तुम तो एक लंगूर हो। तो अंग्रेज बाज जो बिल्कुल भूरे चिट्टे होते हैं, हाँ जी, अगर बगौर देखें और नफरत की निगाह से देखें तो आपको वो बबून लग सकते हैं। तो सुनने वाला जो मकामी था उस बेचारे को इतनी समझ थी। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। उसकी वजह ये कि जो कहने वाला वो भी तो मकामी है ना, मिस प्रोनाउंस कर रहा होगा, बाबू कह रहा होगा, बाबून, एन साइलेंट हो गया, बाबू समझ आ गई उसे। आड़ू नु महल्ले च प्यार ना बबून बबून ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਬੂਨ ਹੈ। फिर है लफ्ज औकात। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ क्या? ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ये गलत है। लफ्ज है वक़्त। तुम वक़्त में रहो, जिसे हम वुक्कत कहते हैं, तुम्हारी तो वुक्कत ही कोई नहीं। ये वुक्कत गलत है, वक़्त है, वाव के ऊपर जबर है। औकात जो है वो अरबी लफ्ज है, इसका मतलब है वक्त की जमा।
ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਬੂ ਜਾਸਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ तुम्हारी जो लैंग्वेज जो बोल रहे हो उर्दू पर अरबी का बड़ा असर है। हाँ, और दूसरा तुम अबू जासिम के बेटे नहीं उसके संडे हो। मेरा साथ दिया कर तुम ही उनकी 3 बार फराक ले आऊंगा। फिर है लफ्ज सैकड़ा। हेलो सैकड़ा सैकड़ा। 100 तो ये सैकड़ा नहीं है, ये सैकड़ा है। सैकड़ा। हाँ जी, सैकड़ा। सैकड़ा एक तो इसमें नून नहीं है, दूसरा हे एंड पे नहीं है, अलिफ है। हे है आंकड़ा, आंकड़ा कभी नहीं सुना, 0। ये असल में जो 0 है ना उसको कड़ा कहते हैं, कड़ा। कड़ा आपने लोहे का कड़ा नहीं देखा, गोल 0 की तरह होता है। हाँ जी, दे फंस गया सी। लोहे का कड़ा होता है। फिर है 2 कड़ा, आंकड़ा 1 0, 2 कड़ा 2 zeros, सैकड़ा 3 zeros, इकाई दहाई सैकड़ा चौकड़ा। सर ऐसे केड़े दौर च फिर रहे हैं। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਪਾਗਲ ਭੇਜ ਰਹੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ठीक कर ਦਿਓ। इन्हां दी ट्रेनिंग कराओ। और साहब हम तो अब आए हैं, आप तो काफी अरसे से देख रहे हैं कि लफ्ज क्या ठीक है क्या गलत है, क्या आप कुछ ठीक करवा सकते हैं हमें? हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या कुछ तो सीखा होगा ना आपने। नहीं नहीं, इसमें क्या मुजाहिका है। देखिए एक लफ्ज है टब, टप, टप, वड्डा टप। इसको टप नहीं कहते। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टब। टीचर आपका मुंह बड़े डोंगे जैसा क्यों है? ये डोंगे को क्या कहते हैं? डोंगे को कहते कुछ नहीं, हाँ। डोंगे को देखते हैं बस। डोंगा पंजाबी लफ्ज है, संस्कृत मंबा इसका। ये उस रकाबी को कहते हैं जो डूंगी हो, जो गहरी हो। आफ्ताब, आज कोई अच्छा सा शेर नहीं हुआ। आफ्ताब। अच्छा जी, आज जफर इकबाल साहब का शेर, मतला है उनका बड़ा खूबसूरत मतला कि यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय ताजरों को करोड़ों रुपए उधार देने वाला अरबपति भिखारी मंजरे आम पर आ गया। सर ये क्या मामला है? ये कौन अरबपति है? ये भारतीय शहर पटना का रिहायशी है, पप्पू कुमार इसका नाम है। पप्पू कुमार। हाँ जी, और इंजीनियर हुआ करता था किसी जमाने में। बेचारा एक्सीडेंट हुआ, अपाहज हो गया, तो इसने मांगना शुरू कर दिया। अब मांग मांग कर ये करोड़पति हो गया और अपना इलाज नहीं करवाता। वो क्यों सर? वो समझता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो लोग मुझे भीख नहीं देंगे। सर भिखारी करोड़पति बन गए, ये बात को मानने वाली नहीं। कमाल है, तारीख भरी पड़ी है ऐसे लातादाद भिखारियों से। ऐसे ऐसे लोग जो अरबपति थे, बाद में पता चला कि जनाब किसी दौर में भिखारी हुआ करते थे। अभी चंद रोज पहले हमने डिस्कस किया है, एक मिस्री फकीर और लाखों पाउंड जमा करवाते हुए पकड़ा गया बैंक में। हमारे पाकिस्तानी 5-6 वाकयात हो चुके हैं। मुगल शहनशाह बाबर ने एक भिखारन के साथ शादी की थी। एडा थोड़े सर। नहीं नहीं, उसकी लातादाद बीवियों में से एक मुबारका बीबी थी। तो सर इसको कैसे पता लगा? वो इस तरह के मुगलों के यहाँ एक रिवायत थी, ये जो बादशाह थे ये भेस बदल के बाजारों में फिरा करते थे। बादशाह भी मांग मांग लेना। ये भेस बदल के फकीर बन के एक दफा फिर रहा था, तो इसने देखा कि ये खातून फकीरों को, भिखारियों को खाना खिला रही है अपने हाथ से, तो इसको बहुत अच्छी लगी। तो इसने उससे शादी कर ली। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि उसका ताल्लुक यूसुफजई ट्राइब से था और उस दौर में मुगलों को सबसे बड़ा थ्रेट पठानों की तरफ से था, और पठानों का एक ये बड़ा फेरोशियस और जंगजू ट्राइब है। बड़े बड़े बहादुर यूसुफजई पठान पैदा हुए। हमारे मरहूम दोस्त अल्लाह गरी के रहमत करे जनरल हमीद गुल अपनी बहादुरी की वजह से जाने जाते थे, और वो यूसुफजई पठान थे। सर वैसे मुगल भी बहुत बड़े बादशाह थे। हाँ जी, अपने दौर में बहुत बड़े थे, लेकिन अंजाम इस बादशाहत का भी वही हुआ जो आम तौर पे बादशाहों का होता है, बहुत बुरा अंजाम। इन्हें सारे मुगलों जो बाबर नहीं मांगे हैं या बाकी भी मांगते रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं हकीकतन तुम्हें बताऊं, आज कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के पोते की पड़पोती
वो कलकत्ता में एक बहुत छोटा सा घर है, बहुत सब ह्यूमन कंडीशंस में रहती है वो। सर बहादुर शाह जफर ने छोड़ा भी तो कुछ नहीं ना। हाँ जी, उसके पल्ले ही कुछ नहीं था बेचारा, खुद अंग्रेजों से पेंशन लेता था। उसकी शदीद कस्मा पुरसी के आलम में ली गई एक तस्वीर, जिसे मैं समझता हूँ अंग्रेज फोटोग्राफर ने सिर्फ इसलिए ली कि उसे निशाने इबरत बना सके। सराय बादशाह, हाँ जी, ये बादशाह है, और देखो शदीद बीमारी के आलम में। ये तो लगता है चर्स के आलम में। फिर शहनशाह अकबर, वो भी मांगता सी सर जी, वो भी भेस बदल के जाता था ना सर, हालात मालूम करने। ये हालात का बहाना है सर। और जिन्हें भी हालात पता करता सी उसको 100-200 मांग लेता था। ये खिलजी भी यही किया करता था। फिर शेरशाह सूरी, तो सानू मौत पई है सर। ये हमारी तौहीन मुस्तकिल हो रही है तुम्हारे शो में। अच्छा, ये सारे लिबास जो है लगता है कोई रजाइयां पहन रखी हैं आप लोगों ने। सर ये भी भेस बदल के मांगते हैं। अपनी बकवास बंद करो। उस्ताद मोहतरम जी, ये कौन है? ए शायर है, लैट्रीना शेर शुरू नहीं लिख दे। अध्यापक शौरा की इज्जत करते हैं। जी जी। आलम पना, आपके सामने मैंने शेर लिखा है, इजाजत हो तो पेश करूं। है इज्जत दे काबिल। दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो बड़ा तू। वाह। दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो बड़ा तू, जिड्डा बड़ा टेढ़े ओडा बड़ा मुंह। अच्छा, ये दरबारी शायर है। हाँ जी। तो इससे कोई ढंग का जूता ही पहना देते, सॉफ्टी पहन के आ गया। एदा खुस्सा बादशाह ने पाया है। आलम पढ़ाया और शेर हो गया। जी जी। आपके शान में ऐसा शेर हो गया। हाँ, ऐसा शेर हो गया। हाँ जी। किधर गया शेर? हो गया, शेर हो गया। ये क्या गुस्ताखी है हमारे दरबार में? तू आप ही चांस देता है। अर्ज किया है बादशाह, ये आया कि क्या जादूगरी है। अब देखो, अर्ज किया है। मैं आ रहा, तू बैठ। आजो 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 शायद साहब आजो। 10 मिनट लग जाने, आजो। खाली जा, जल्दी कर लो, अगली बारी मेरी है। ओए अन्नी दिया, तू तो बादशाह का कोल्लू बनाता है। बादशाह क्या तेरी रियाया की जादूगरी है? हाँ हाँ, अख कर दे बादशाह तेरी रियाया की क्या जादूगरी है? तेरा शेर लंबा हो रहा, उन्हें टाइम ज्यादा मिल रहा है। अर्ज किया है। आय हाय हाय। अच्छा, क्या शेर जाता क्या? आजा। हाय हाय। सारा देख लो, धांधली हुई है। क्यों? असी रिकाउंटिंग करानी है। आलम खान हजूर, बस थक गए। ठहर जाए, ये तो मेरा पहला साह नहीं रलिया। अब जी, क्या बात है? अब जी वो मोदी है ऐसी। उसका नाम मोदी है। मोदी है तक मल्लेदार है तुम्हारा मोदी। वो मेरा बेटा है, वो जो मर्जी कहे, तुम दखल दर माकुलात मत करो। अच्छा, ये फिक्र ना बोल, फालज हो जाता ਹੁੰਦਾ। वो ऑफिशियल टूर नहीं, प्राइवेट कैपेसिटी पे मिलने आए थे। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। आलम पना, इतनी सर्दी में भी पंखा। ये रिवर्सेबल है मामा, इथे आके देख, गर्म हवा आ रही है। मलका आलिया जी बादशाह सलामत। क्या आप जंग पे जाना पसंद करेंगी? बादशाह सलामत, अब सीधे होके बैठिए, लगता है भैंस लेटी हुई है। अम्मी जुगत भी तहजीब के दायरे च कर दी। अब जी अम्मी बोर होए ने, इन्होंने उल्टबाजी ला के बखाओ। मलका आलिया जी बादशाह सलामत। क्या आप हमारी कलाबाजी देखना चाहती हैं? सीधा होके बे। अब तुसी कलाबाजी ना लाना, लगेगा हाथी पेंचर लवाउण। राती पेंचर लवांदा है। अच्छा, जुगत नु एंजॉय नहीं अब्बू जी करदे, ओदी तफसील पूछण लग पे। अब जी क्या बात है? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ? अध्यापक ਕਿੱਥੇ ਨੇ? बा मुलाहिजा, होशियार। माशाल्लाह कितनी थोड़ी उम्र है उन्हों दी। हम अपनी मलका के साथ खुद आ रहे हैं। तौबा 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 तौबा। तुम बादशाह किस तरफ से बन गए हो भाई?
ہم بادشاہ ہیں اور ہم بھی ملکہ ہیں. یہ فقیر ہوا کرتے تھے, ہم سے مانگ مانگ کر آج اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں یہ لوگ. اور اج تسی ساڈے کول قرضہ لیندے ہو. اوہو کیسے آنا ہوا؟ لوگ تیری جان نو رون ڈے نے, نہ پانی ہے تے نہ گیس ہے. گیس تو کیا بجلی تک نہیں آ رہی. اور ہسپتالاں دے حالات دیکھے نے کدی؟ ایک ایک بیڈ تے 4 چڑھے ہیں. توبہ. لو جی اورنج ٹرین سے چل پئی جے, اور کچھ چلے نہ چلے. یہ کون ہے وے؟ یہ ساڈی اورنج ٹرین ہے. لوکی سمجھیں گے نا سی کچھ کرنا ہے, اتھوں ہی نہیں چل رہا ہے. ایتھو اٹھ. تینوں پتہ ہی نہیں اس حکومت دا. میں جانا تے میری حکومت جانے. کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. مر گیا. حکومت دونوں دے ہتھوں نکل گئی ہے. اللہ میں میری تے حکومت چلی گئی ہے. لیکن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.